The United States ended 20 years of war in Afghanistan. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج دو تین معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے عمران خان کے چند بیانات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تنقید سے مبرہ ہے، فوج تنقید سے مبرہ ہے، کیونکہ ایک ہسٹری رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست میں میڈلنگ کی، جو کہ انتہائی افسوسناک رہی. لیکن خوش آئند بات یہ ہے، جس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، کہ پاک فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا، اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کیا، اپنی رسپانسبلٹی ٹورڈز دا پیپل آف پاکستان، ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری، اینڈ اسپیسیفکلی اینڈ مور امپورٹنٹلی ٹورڈز دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اس رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کیا، پالیٹکس میں سے اپنے رول کو مائنس کر لیا، اے پولیٹیکل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان فوج کے اس نئے رول کو، جو کہ بالکل غیر آئینی، جو کہ بالکل آئینی ہے، بالکل جمہوری ہے، اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ آج بھی عمران خان صاحب کی پیشی تھی عدالت میں، اور وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اس پہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بلا وجہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ الزامات لگا رہے ہیں جن الزامات کی بنیاد کوئی نہیں ہے، جن کا ثبوت کوئی موجود نہیں ہے، اپنے ان الزامات کو ثابت نہیں کر پائے. قاتلانہ حملے انتہائی افسوسناک ہیں جو عمران خان صاحب پہ وزیر آباد میں ہوا. سابق وزیر اعظم ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اپنی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں، جو اب ہے صدر پی ٹی آئی کے، پرویز الہی، وہی اس وقت چیف منسٹر تھے. پرویز الہی صاحب نے خود ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا عمران خان کی منشا کے مطابق. تو ان پرویز الہی کو تو خان صاحب نے اپنی پارٹی میں صدر بنا دیا. اب کیا وجہ ہے کہ جن الزامات کو آپ کی اپنی پارٹی کے صدر تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، ان کو خان صاحب بار بار ایک بیانیے کے طور پر ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھارت میں موجود ہے، جہاں پہ G20 کا اجلاس ہونا ہے، اور وہاں پہ نہ صرف پاکستان کشمیر پہ اپنا موقف، مقبوضہ کشمیر پہ اپنا موقف تمام ممالک کے سامنے رکھے گا، بلکہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، جس میں ظاہر ہے سب سے پہلے کشمیر پہ بات ہوگی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کر سکتی. یہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو بار بار ڈائیلاگ کی کوشش کرتی رہی ہے بھارت کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسے موقع پہ بیانات دے رہے ہیں کہ جب پاکستان عالمی افق پہ ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہے، کشمیر کا مقدمہ اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، جس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے، پاکستان کی قومی سیکیورٹی کا، نیشنل سیکیورٹی کا، قومی سلامتی کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں. آپ کے جو مسائل ہیں، جنگ تو آپ کر نہیں سکتے، نہ کرنی چاہیے، تو آپ کم از کم مذاکرات کی ٹیبل پر تو آئیں. سیاسی جماعتیں اگر مذاکرات میں بیٹھ سکتی ہیں تو پھر آپ ظاہر اپنے دیگر ممالک جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس خطے کے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. تو کیا وجہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ایک بے جا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. پھر چائنیز فورن منسٹر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اس بارے میں سوال کریں گے ایک تو. دوسرا، سپریم کورٹ نے آج اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جو کہ بڑی تاخیر سے سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی کل کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، جو کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروانے کے حوالے سے ہے. اب مذاکرات تو پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں ناکام ہو گئے ہیں. کل سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ آج تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مذاکرات سپریم کورٹ کی خواہش پہ نہیں ہو رہے، سیاسی جماعتوں نے خود کیے. تو کیا مذاکرات سے آگے بڑھ کے سپریم کورٹ کوئی مزید حکم نامہ جاری کر سکتی ہے؟ اور آج کے ریٹن آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دے دیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے اگر پولیٹیکل پارٹیز کے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट का ये रिटर्न ऑर्डर कितना बाइंडिंग है, गिवन दैट इलेक्शन कमीशन भी जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में और उसने चैलेंज कर दिया है, उसने दरख्वास्त भी की है कि आप पंजाब के इलेक्शन देने के डेट देने के मजाज नहीं है। तो सूरत हाल आगे कहाँ जा सकती है, किस तरफ को जा सकती है, कल क्या होगा, कल के बाद आगे क्या होगा, इन तमाम सवालात के जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कल ये खबर आई थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करवाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर दिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पेश होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, और ये सारा मामला कहाँ जाएगा, ये फ्रिक्शन का पुश एंड पुल जो एक हो रही है बिटवीन पार्लियामान एंड द सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ जाएगा। सो इन मामला पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतहाई काबिल एहतराम है, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और अहमद हुसैन डेहर साहब हैं जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आलिया साहिबा से मैं ज़रा गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन लाहौर में शायद बारिश हो रही है, तो जो उनका DSNG का लिंक है वो फिलहाल डाउन हो चुका है। अहमद हुसैन डेहर साहब, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन हैं, PAC ने तलब कर रखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और आप लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करवाना चाहते हैं। अगर रजिस्ट्रार पेश नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के PAC के सामने, देन व्हाट? देखें, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जुडिशरी इज सुप्रीम, नो डाउट। लेकिन अपने अपने एम्बिगुइट्स में रह के एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे की प्रिविलेजेस का ख्याल करना, मैं समझता हूँ ये हमारी रिवायात भी हैं और वैल्यूज भी हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी हैं। इसके ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कोर्ट्स में हाजिर होते रहे और जब भी कोई ऐसा मसला हो, हाँ। और इस तरह रजिस्ट्रार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, आई थिंक दे शुड कम, दे शुड आंसर वट एवर द प्रॉब्लम्स आर वी आर फेसिंग नाउ आर डेज, और उनको आना चाहिए और यहाँ बात करनी चाहिए। ऐसी चीजें जो हो रही हैं, डेहर साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप लोग इस वक्त पे, जबकि सूरत हाल सबके सामने है, किस तरह से पार्लियामान के अंदर से तसादुम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के चंद मखसूस जजेस के खिलाफ, उसमें सुप्रीम कोर्ट को ऑडिट करने का ख्याल आ जाता है एकदम से पार्लियामान को। तो जो नियत है, जो इंटेंट है और जो टाइमिंग है, वो क्वेश्चनेबल है ना। देखें, टाइमिंग में अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, टाइमिंग में अगर लॉज चेंज हो जाते हैं, टाइमिंग में अगर पाकिस्तान का नाम चेंज हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि टाइमिंग का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक है। मसलन अभी जो अमेंडमेंट हुई है, जो हमारा एक ख्वाब था, I'm also an advocate, I must say that, कि सुओ मोटे के ऊपर अपील होना और ये जो बेंच फॉर्मुलेशन होती है उसमें 3 मेंबर्स का, 3 सीनियर जजेस का, ऑनरेबल जजेस का, तो कभी ख्वाब में हम सोच भी नहीं सकते थे कि होंगे। एंड इफ दैट हैज बीन डन, तो मतलब वी शुड अप्रिशिएट। टाइमिंग में क्या जंगों में फैसले नहीं होते कि चर्चिल ने कहा कि इंसाफ मिल रहा है तो जंग जीत जाएंगे। बात इंसाफ की है। इंसाफ अगर किसी भी टाइमिंग में दिया जाए और उस पर अमल किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि टाइमिंग क्या ऐसी बात है। हमें चाहिए कि हमने एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की बात करें, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। मसलन कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि फ्री, फेयर एंड जस्टिफाइड इलेक्शन। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन मुझे क्विकली, डेहर साहब मुझे क्विकली बता दें, देन आई हैव टू गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स। डेहर साहब मुझे क्विकली बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पेश नहीं होते PAC के सामने, देन व्हाट? क्या आप फिर भी ऑडिट करेंगे? देखें, एक प्रोसेस है जो पेश नहीं होता, उसके लिए भी लॉ में कुछ चीजें दी गई हैं। वो क्या जो है? लॉ कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। वो क्या है? अगर कोई पेश नहीं होता PAC के बुलाने के बाद, तो फिर क्या हो सकता है? कोई जुर्म है? नहीं, क्या होगा अगर रजिस्ट्रार पेश नहीं होते तो क्या लॉ है? मुहतरमा बेनजीर भुट्टो भी स्टैंडिंग कमेटी में आई थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। देखिए, नहीं, आप क्या करेंगे? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ कि अगर रजिस्ट्रार नहीं पेश होते तो फिर लॉ क्या कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे क्या करेंगे आप?
देखिए डिस्प्लेयर नोटिस भी हो सकता है, अच्छा, शो कॉज नोटिस भी हो सकता है, अच्छा। और इससे भी सख्त हो सकता है, लेकिन हम नहीं ऐसा चाहते कि अच्छा, हम ठीक। कोई ऐसा एक्शन लें। लेकिन एक रजिस्ट्रार एक लॉ को अगर ओवर द हैंड ऐसे ही खत्म कर दे, हाँ। और एक कोर्ट का फैसला है उसी को भी इग्नोर कर दे, ठीक। और जो मर्जी चाहे वो उसकी जिस तरह उसकी ठीक है, मर्जी चाहे ठीक है, उसकी राइट, interpretation लेट दे दे। मी गो टू मेरे अदर ख्याल में ये पार्टिसिपेंट्स। कानून की ठीक है, डेढ़ साहब खिलाफवर्जी आपका नहीं पॉइंट आ गया, कोई लेट मी गो टू अदर भी पार्टिसिपेंट्स नहीं है प्लीज। इससे। जी आलिया साहब लाइन पे मौजूद है क्या? एक ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में, ये ठीक करें जी टेक्निकल के प्रॉब्लम्स। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक देन वी कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर में बारिश हो रही है। अनफॉर्चुनेटली आलिया हमजा मलिक साहिबा जो कि वीडियो पे डीएसएनजी पे मौजूद थी, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ आ चुकी हैं, और मैं उसके बाद सेंटर असद अशरफ साहब से भी सवाल जवाब करना चाहूंगी। बट असद साहब, मैं जरा आलिया हमजा साहिबा से बात कर लूँ, जो मेरे आज प्रोग्राम का ओपनिंग स्टेटमेंट था, ओपनिंग इंट्रोडक्शन था। आलिया साहिबा, इमरान खान मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बिला वजह सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बज़ाहिर तासुर मिल रहा है। आज भी जिस किस्म के इल्जामात उन्होंने लगाए हैं जिसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, क्या ये समझा जाए, ये सवाल है, क्या ये तसव्वुर किया जाए कि इमरान खान साहब की इक़्तिदार की ख्वाहिश या इक़्तिदार के हवाले से कोई भी फ्रस्ट्रेशन मजबूर कर रही है इस किस्म के बयान देने के हवाले से, या कोई और वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, मैंने सिर्फ आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट ही सुनी है, मैं उसका जरा जवाब दे दूं। आपने ये कहा कि जी खान साहब ये बातें करें, और खान साहब जिस तरह की बातें करें, मुझे ये बताएं कि जिस स्टेटमेंट को खान साहब से रिलेट किया जा रहा है, क्या ये नई स्टेटमेंट है या ये वही बात है कि जी जो बात बाजवा साहब बुला कर एंकर्स को नहीं बताते रहे हैं? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है? नहीं, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं आपकी इजाजत से वक्त आपके जवाब देने का है। मेरी एक हम्बल सबमिशन है, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अब चूंकि चंद लोगों ने इस ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग को सामने लेके आ गए, तो मुनासिब लगता है कि इसको बार बार दुरुस्त कर दिया जाए। जनरल बाजवा ने ये बात इस तरह से कतल नहीं की थी जिस तरह से बताई गई है, इतना मैं कम अज कम, क्योंकि मैं खुद उस मुलाकात में, कई मुलाकातों में मौजूद उस चीज को कहें, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि खान साहब ने जितनी बातें की, इनमें से तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नई नहीं है, और ये बातें तो इतनी इररेलेवेंट हो चुकी हैं, और हम इनसे बहुत आगे निकल आए हैं। जब आप कत्ल के इल्जामात लगाते हैं, एक सेकेंड, ये इल्जामात की बात नहीं है। मैं जो बात करना चाहती हूँ, और ये क्वेश्चन भी हुआ है डीजी IFCR के ऊपर, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, और हम तो अपनी फौज से ये एक्सपेक्ट करते थे कि जी हम तो दिल्ली का किला फतह करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि एक टिकटॉकर हमने वजीर खारजा रखा हुआ है जो आज कश्मीरियों का ही सौदा करने इंडिया पहुंचेगा। मैं 2-3 बातें जो करना चाहती हूँ, जिस पर आपने कहा है कि जी ये ए पॉलिटिकल हो गया, हम सबकी विश है कि ये ए पॉलिटिकल हो, इंक्लूडिंग खान साहब की, क्योंकि एक तरफ जिस पार्टी के साथ, जिस लीडर के साथ अवामी हमायत हो ना, उसे किसी किस्म की बेसाखियों की जरूरत नहीं होती। बेसाखियों की जरूरत उन लोगों को होती है जिनके साथ अवामी हमायत ना हो, उन्हें डिग्गी में जाकर, उन्हें बुरके पहनकर और यहाँ पर। लेकिन फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी आपने दी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी आपने दी, जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर भी आपने की, जनरल बाजवा के कहने पे असेंबलियां भी आपने तोड़ी। देखिए मैं 1 मिनट में सिर्फ अपनी बात पूरी कर लूँ ना, जो बातें की उसके बाद मैं उन पर भी आ जाती हूँ। वो एक्सटेंशन की तो आप बात करेंगे ना, वो तो बाजमात सबने दी थी, और बाजमात देने वाले आज बैठे हुए भी हैं, जिन्होंने बाद में भी एक्सटेंशन के लिए बोला भी था, और जो आई हुकूमत में इस डर से थे, और जिन्हें इक़्तिदार का लालच ही इतना था कि जो आई इसलिए थे कि शायद जनरल फैज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न बन जाए, या उनको जो डर थे, जो अब उन्हें डर है कि जी सितंबर तक तो बंदियाल साहब हैं, अगर दोबारा यहाँ पर इंतखाबात हो गए तो क्या होगा। हालांकि ना हमें पहले ये कोई डर था, हम पे ना करप्शन के केसेस थे, और ना हमें ये डर है कि इंतखाबात में चाहे ईसा साहब हो चाहे बंदियाल साहब हो, हमने तो अवाम की ताकत से आने। मैं जो बात करना, अगर अवाम की ताकत से आना है तो फिर फौज को बार बार सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? क्यों ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट आपको फैसिलिटेट करे? एक मिनट गरीदा साहिबा, मैं एक जो बात यहाँ पर करना चाह रही हूँ, मैं सवाल उठाना चाहती हूँ, मैं अवाम के सवाल उठाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, DG IFCR, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
क्योंकि उंगलियां उनकी तरफ उठती हैं, अवाम उनसे सवाल करती है, इदारे की इज्जत और तकरीम का सवाल होता है। रीजन क्या है? नहीं, इदारे की इज्जत और तकरीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम अभी भी पाक फौज के अपनी एजेंसीज के पीछे खड़ी हुई है। ये सिर्फ एक मिसपर्सीव्ड इल्यूजन है जो कि दिया जा रहा है। सर, आलिया साहिबा, आर्मी चीफ ने तो बार बार बात की, बड़ी अच्छी बात की कि आप हमारा पाकिस्तान के लिए मिल के बैठे, सियासतदान मिलके बैठे। आप लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर। जी, मैं 1 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगी, सिर्फ 1 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगी इसी चीज के ऊपर। मैंने कहा ना, मुझे सवाल उठाने देना। मैं तो बिल्कुल हमारा पाकिस्तान चाहती। अगर वो हमारा पाकिस्तान होता जहां आज मुझे ये डर ना होता कि अगर मैं आर्मी चीफ पर या DG/ISPR पर बात करूंगी या मैं जनरल फैसल नसीर पर बात करूंगी तो काली वीगो मेरे घर पहुंच जाएगी, जहां पर मुझे ये डर ना होता कि हमारे घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, नामालूम लोग हमारे घर वालों को उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद पुलिस समेत सब दुहाइयां देंगे। हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अली अमीन का किस्सा आपके सामने नहीं है? 3 दिन से उनकी बेल हुई है, आज वो सक्खर से रिलीज हुए हैं। क्या फवाद चौधरी साहब के होते हुए वहां पर अदालत बुला रही होती है, पुलिस कहती है हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं? क्या आपने वो नहीं देखा है कि 33 हमारे वर्कर्स को पुलिस लेकर जाती है बकौल इसके, जबकि सादा कपड़े वाले लेकर जाते हैं? हम पूछते हैं तो वफाकी हुकूमत हमें क्या जवाब देती है? वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर हमला होता है, वहां पर ये जो आज माफिया मांग रहे थे वो किसी से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। निगरान वजीर आला कहते हैं मुझे नहीं पता, IG कहते हैं मुझे नहीं पता, CCPO कहते हैं मुझे नहीं पता, वफाकी हुकूमत कहती है मुझे नहीं पता। तो सवाल ये उठते हैं उन लोगों की तरफ और इसी पे हम ये पूछना चाहते हैं कि हम तो आपके साथ खड़े थे, हम तो आपका मुकदमा लड़ रहे थे, हम तो 5th जनरेशन वॉर में आपका मुकाबला जब उन लोगों के साथ था जो या जलसों में आपको मलाइन करते थे, नाम ले लेकर कहते थे कि इन सारी चीजों के जिम्मेदार आप हैं, आज उन्हीं सारी चीजों के जिम्मेदार जस्टिस साकिब निसार हो जाते हैं। आज वही मरियम नवाज जो बाजवा साहब और जनरल फैज कहते नहीं थकती थी, आज क्यों नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये कहती है, जिनसे आसिम आसिम कह के ट्विटर पे मुखातिब होती हैं, क्यों नहीं कहती हैं कि इनका कोर्ट मार्शल करें? आपने 1 मिनट कहा अनइंटरप्टेड, 3 मिनट होने वाले हैं। आई हैव टू गो टू सेंटर। असद साहब प्लीज, बस एक लास्ट बात जी जरूर। जो ख्वाजा आसिफ से तो पूछना था, जो आज अदलिया की दुहाइयां दे रहे हैं, कल तक तो ये उसी फौज की दुहाइयां देते कि ये हमारा गोश्त तक खा गए, अब तो हड्डियां बच गई हैं, किसी दिन हड्डियां भी खा जाएंगे। अच्छा। जो कांपे टांगने वाली बात कर रहे थे, वो कांपे टांगने वाली बात क्या उस बात से ज्यादा खतरनाक नहीं थी? वो तो इसी बात को विंडिकेट कर रही थी जो हामिद मीर साहब फरमा रहे थे। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो के 8 से 8 कल तक जिन लोगों ने बचानी थी और आज भी ये अटैक करेंगे और उनके अटैक शुरू हो चुके हैं। अच्छा, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आपका जवाब 6 मिनट हो गए आलिया साहिबा, जस्ट टू बी ऑन द रिकॉर्ड, बल्कि 6 मिनट से ऊपर 7 मिनट्स आपका अनइंटरप्टेड कम से कम जवाब गया। नाउ आई हैव टू गो टू सेंटर। असद साहब, नहीं आपके पास दोबारा भी आऊंगी, लेकिन मुख्तसर से चीज जरूर कहना चाहूंगी जिन पे आज आप सवाल कर रही हैं, इन्हीं के आप लोग हिमायती थे फ्रॉम 2014 से लेके, बल्कि उससे भी पहले 2018 से लेके 2022 तक आप इनके हिमायती थे, नंबर 1। और बड़ा अच्छा लगता कि ये सवाल आप उठाती अपने दौरे हुकूमत में 2018 से 2022 तक। ये बड़े अच्छे लगते ये सवालात, बड़ा मजा आता, हम भी आपके लिए तालियां बजाते, वाह वाह करते, आपके साथ खड़े होते। अब भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जवान भी मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा पाकिस्तान के नजरिए पे इकट्ठे हो जाए ना। सकती कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जिन के लिए हम कुर्बानी देकर जिनके साथ हम खड़े थे, आज उन्हें अवाम के साथ खड़ा होने, ये फैसला उन्होंने करने कि चोर लुटेरों का साथ उन्होंने देने या अवाम? ये इल्जामात है, ये महज इल्जामात है, इनका सबूत PTI के एक भी बंदे के पास नहीं होगा। आप मेरे साथ बेशक 1 या 10 प्रोग्राम कर लें। आप मुराद सईद का देख लें, पूरा मालाकंड उसके लिए निकला है, पूरा सवात उसके लिए निकला है। अवाम किसके खिलाफ है? अवाम इसी चीज पे कह रही है कि हमें अमन चाहिए, हम दहशतगर्दी। ये सवालात आप तब भी करते 2018 से 2022 अपने हुकूमत के दरमियान, बड़ा अच्छा लगता, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होती। अच्छा आलिया साहिबा, आई हैव टू गो टू असद साहब। असद साहब नाराज हो जाएंगे, असद साहब नाराज हो जाएंगे, चाहते हैं कि हर इदारा असद साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं असद साहब, मैं चाहती हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आए, क्या कहेंगे? डिस्कशन जो हो रही है, जो मेरा बुनियादी सवाल था, इस पे आपका इनपुट चाहिए। असद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
सेनेटर असद अशरफ साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, अहमद हुसैन डेहर साहब, आपके पास मैं यही सवाल लेके आऊंगी, इसका जवाब आपसे चाहिए जब तक सेनेटर असद रिकनेक्ट हो जाते हैं। जी प्लीज रिपीट करेंगे। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि इमरान खान जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, फौज मुखालिफ, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ, और एस्टैब्लिशमेंट और फौज अपनी तनकीद कभी भी उस पर पाबंदी नहीं लगाती है, कभी भी इस बात की हामी नहीं है कि उन पर तनकीद जो कि कंस्ट्रक्टिव तनकीद हो वो ना की जाए, लेकिन जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं बिला वजह बेजा की, इसके पीछे आपको मकसद क्या नजर आता है? देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझता हूं। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दीवार से लगाया जाता है तो सबसे पहले फौज के खिलाफ बातें शुरू की जाती हैं। इराक, ईरान, सोमालिया, यही कुछ हुआ। अब यहां ये साजिश रची जा रही है, ये जो यहूदियों के एजेंट हैं और जिन्होंने ये ठेका ले लिया है कि फौज के खिलाफ हमने बात करनी है, ये देखिए अपना बयानिया बनाने के लिए साइफर के ऊपर अमेरिका के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, चाहे उससे मुल्क को नुकसान हो। ये अपना बयानिया बनाने के लिए उस फौज पे बात करते हैं जो फौज इन्हें ले आने वाली है, उस ये जनरल बाजवा पे बात करते हैं। इनके लिए जो सबसे बड़ा खेल है ना, वो है इदारों के ऊपर बात करना। ये नहीं समझते कि हम लोग सुबह से शाम को जाते हैं, घर चले जाते हैं। इदारे के ये जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, जब ये जंग पे जाते हैं तो ये बात को शहादतों में वापस आते हैं। उन लोगों के ऊपर बातें करते हैं जो मुल्क के लिए शहादतें दे रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। खुदा की कसम, ये लोग गद्दार हैं इस मुल्क के। एक एक बच्चे के ज़हन में ये गद्दारी डाल रहे किसी को गद्दार हैं। ना इनको कहते हैं हमें टाइम दे दें, गद्दार किसी को ना कहें, कोई भी गद्दार नहीं है। देखें ना, बोलने नहीं देंगे सबकी अब देखें, बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं खरीदा बात कर रही हूँ। नहीं, मैं खरीदा बात कर रही हूँ। नहीं, मैं खरीदा बात कर रही हूँ, आलिया साहिबा बात नहीं कर रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये गद्दार किसी को भी करार ना दे। ये नेशनल टेलीविजन है, मुनासिब नहीं। ये बताएं जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैं करे। अपने प्रोग्राम में मैंने यूनानिमस करारदाद पास की है असेंबली में। मैंने कहा है कि सियासतदान जिसको मर्जियां आपस में गालियां दें, एक इंस्टीट्यूशन फौज को छोड़ दें, जो हमारे एटम बम की हिफाजत के जामिन है, जो हमारे लिए जाने देते हैं। सियाचिन पे जाके सुबह को जब जाते हैं तो उनके माँ बाप को पता नहीं होता कि वापसी पे आएंगे या शहीद होके आएंगे। खुदा के लिए, जो इन लोगों ने इतना जुल्म किया है। पिछले दिनों लंदन में इन्होंने मुजाहरे में 6-7 जर्नैलों के फोटो पे जुतियां मारी हैं। आप अगर फौज वो जजेस की फोटोज पर भी मारी थी, दुनिया वो जजेस की फोटोज पर भी मारी थी, पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। ये देखें, जो फौज के खिलाफ बात करता है, आप उसको पैट्रियट कैसे कह सकते हैं? मेरी इसी बात से इख्तलाफ हुआ। मैंने खान साहब को कहा कि आप ऑपोजिशन को गालियां देने लग गए, आप इदारों को गालियां देने लग गए। आप तो यहाँ पे आए थे कि एजुकेशन रिफॉर्म्स करेंगे, हम जो है पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, हम हेल्थ रिफॉर्म्स करेंगे। आप तो हम अर्तुगुल कहते थे, आप तो अच्छे काम करने आए थे। आप लगता है किसी बाहर के एजेंडे पे आए हैं और आप मुल्क में बदअमनी पैदा कर रहे हैं, रोज डॉलर खड़े कर रहे हैं, रोज आप असेंबलियां तोड़ रहे हैं, आप हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे मुल्क में अनस्टेबिलिटी हो रही है। अब एक लॉ पास हुआ है, बहुत अच्छा है, जो इसका सुओ मोटो का हुआ है। हमें सबको वेलकम करना चाहिए। हर चीज में मुखालफत की जा रही है। आपके पास वापस आती हूँ, आपकी इन बातों का आलिया साहिबा जवाब भी देना चाहेंगी, लेकिन आलिया साहिबा असद अशरफ साहब की तरफ मुझे जाने दीजिएगा। असद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप भी शायद लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर में बहुत तेज बारिश है। आपका स्काइप नहीं चल रहा, आलिया साहिबा की DSNG नहीं चल रही, लेकिन बहरहाल जवाब दीजिएगा। जो हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब के बयान फौज के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, उसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये भी एक यू टर्न है, जैसे इनकी सारी जिंदगी की पॉलिटिक्स में है। ये वही है ना जो अंपायर की उंगली की बात करते थे, ये वही है जो RTS बिठाने पे और जब इनकी आवाजें टेप होती थी तो कहते थे ये मेरे जो हैं सिक्योरिटी के लिए और इनको हक है कि ये मेरी ऑडियो वीडियो जो है बनाएं। ये वही है जो एक्सटेंशन देते थे, बार बार नोटिफिकेशन करते थे और हमें तो मजबूर किया गया था वोट देने पे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जी इस चीज को पास करें असेंबली से, वरना हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। ये ओपनली रोज रात को डिस्कशन में कहते थे कि अगर वोट ना दिया तो जिसने वोट ना दिया उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी एक पेज पे रहने वाले, एक सफे पे रहने वाले, और जब 11 अप्रैल को निकालेंगे उसके बाद भी एक सफे पे रहने वाले, उनके कहने पे असेंबलियां तोड़ने वाले, आज उन्हीं को डर्टी हैरी और फलां और कत्ल
اور اس طرح کے لیکن عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس سب کا آغاز، اس کیمپین کا آغاز آپ لوگوں نے کیا تھا جب آپ لوگ جنرل باجوہ، جنرل فیض کے خلاف اپنے جلسوں میں 2018 میں بات. ہم نے ان سے نہیں کیا، ہم نے ان سے پہلے کیا. ہم نے وحید کاکڑ کے زمانے سے کیا تھا جب وہ اسٹک دکھا کے اسمبلی کو چلانا چاہ رہا تھا، پارلیمنٹ کو چلانا چاہ رہا تھا. ہم اس ہر چیز کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے ان کو روکنے کی اور ان کو اپنی جو ہے پارلیمنٹ کی سوورنٹی اور پرائم منسٹر اور حکومتوں کے جو کام ہیں ان کو رکاوٹیں جہاں آ رہی تھی اس کے لیے کہہ رہے تھے. ہم نے کیا کہا تھا باجوہ کو گجرانوالے میں کہ باجوہ صاحب آپ کو مہنگائی کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو اس دہشت گردی کا جواب دینا پڑے گا. یہ جو دوبارہ کے پی کے میں لا کے بتائے گئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں نا 6 جو ہے ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں وہاں پر. نہ صرف وہ ہوئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح اسکول ٹیچرز کو ٹارگٹ کیے گئے 2 ڈفرنٹ میں، وہ بھی شاید انہی کا ہو. یہ کنہوں نے لا کے آباد کیے؟ ابھی اور بھی خبریں آ رہی ہیں. مراد سعید کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ٹیررزم کے خلاف جو ہے حکومت کے آپریشن کے فیور میں نکلے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو اپنے کسی قریبی عزیز کو شنید ہے کہ وہ اپنے ورکر کی طرح کوئی نقصان پہنچا کے پھر اداروں پہ لائیں گے اور سیاست کریں گے اور پھر سائبر کی طرح وہ لیٹر کی طرح وہ کاغذ دکھائیں گے. آپ دیکھیں نا جیسے ہی ہم سی پیک کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مراد سعید کو پاکستان تحریک انصاف خدا نہ خواستہ خود ہی نقصان پہنچائے گی اور پھر اس کا الزام اداروں پہ اور حکومت پہ لگا دے گی؟ بالکل اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے اور اس طرح کا کرا کے یہ جو ہے الزام جو ہے یہ اسی طرح ڈرٹی ہیری اور ان پہ لگائیں گے اور دوسروں فوج کو بدنام کریں گے، حکومتوں کو بدنام کریں گے. یہ فیشسٹ ان کی سوچ ہے. آپ نے دیکھا 10 منٹ وہ بولی ہے میری بہن، لیکن آپ کے ایک سطر کا جواب، ایک سینٹینس کا جواب نہیں دے سکی. ہر بار 1 منٹ کہہ کے 10 منٹ تک وہ بولی ہیں لیکن جواب نہیں دیا. جیسے ہی سی پیک آپ دیکھیں نا اب کام شروع ہوا ہے تو کن کی میٹنگیں بڑھتی جا رہی ہیں، کون لابیز جو ہے وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کون ان کو رکوانا چاہ رہا ہے، کن لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہے اور کس طرح اپنے ریلیشن کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کا امیج جو ہے ہمارا غلط طور پہ پورٹریو کیے گئے. حالانکہ آپ نے دیکھا وہ 50-60 جو جلسے کیے تھے اس میں ایک ہی گردان تھی اور وہ یہی تھا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے اور سازش ہوئی اور پھر سازش کو ہوتے ہوتے محسن نقوی سے ہوتے تھے. مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ وہ کیا آدمی تھا جو یہاں لاہور پہ تھا، اس کا نام مجھے نہیں یاد، اختر لاوا شاید تھا، کہ اس پہ آ کے اینڈ پہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کہا ہے. بڑی بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں نا بیماری کا اور مریضوں کا اور قائدین کا مذاق اڑانے والے آج کس طرح پیش ہوئے ہیں. شہباز شریف نے آپ کو یاد ہوگا سروس ہاسپٹل کے باہر وی آئی پی وارڈ کے باہر جب ان کے وزیر صحت صوبائی اور قومی کے دونوں کھڑے تھے، فیصل سلطان بھی، تو کہا تھا کہ عمران نیازی وزیروں مشیروں کو آپ سمجھائیں کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. سیاسی مخالفین کی بیماری کا مذاق اڑانے والے نہ بھولیں کہ وقت جو ہے بڑی تیزی سے بدل جاتا ہے. اور آج دیکھیں آپ کیا حال ہوا ہے، کس طرح کی پریزنٹیشن ہوئی ہے کورٹ میں اور کس طرح کی وہاں یہ ڈپریشن کی باتیں ہیں اور یہ ڈپریشن کے الفاظ ہیں. یہ بار بار آپ کو یہ چاہیں گے کہ جی اس طرح کے حالات رہیں تاکہ پاکستان جو ہے کنٹینیوس ٹرمول میں رہے اور یہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہے. رائٹ، ان ساری باتوں کا آپ نے بھی بڑے لوڈڈ قسم کے الزامات عائد کیے ہیں. ڈیہر صاحب نے بھی. عالیہ صاحبہ ڈیفینیٹلی اس کا جواب دینا چاہیں گی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. جی عالیہ حمزہ ملک صاحب آپ کا جواب. دیکھیے انہوں نے یہاں پہ نا اتنی باتیں کی اور مجھے افسوس یہ ہے کہ دونوں حکومتی نمائندوں کو آپ نے بٹھانا تھا تو آپ ٹائم بھی مجھے آپ پورا ہی دیجیے گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی عمران خان کا یہ جو آج والی بات ہے میں صرف ان کے لیے اتنا بتا دوں کہ ایک عمران خان ہی تو ہے جو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کھڑا ہے. باقی لوگ تو جو اس وقت آئین اور قانون کی دھچیاں اڑا رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. ہم کوئی عدالتوں سے ریلیف نہیں مانگ رہے ہیں. ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریفوں کو انصاف دیتے ہیں نا وہی مجھے چاہیے. وہی انصاف جس کے تحت 5 سال ساکدار مفرور رہا اور ڈائریکٹ وزیر بنا. وہی انصاف جس کے تحت 2 سال شہباز شریف پر پردے جرم عائد نہیں ہوئے اور سیدھا وزیر اعظم بنا. وہی انصاف جس کے تحت زرداری کے کیسز کراچی میں ٹرانسفر ہوئے اور وہی انصاف جس کے بعد آج 4 سال کے بعد بھی وہ جو رانا ثناء اللہ ہے نا وہ وزیر داخلہ بھی بنا ہوا ہے اور پردے جرم عائد نہ ہونے کے باوجود جو ہے آج اشتہاری بھی ہے ایک مقدمے میں. اور اگر یہ انصاف نہیں دینا ہے نا تو ایکس رے جمع نہیں ہم کرائیں گے. آئندہ ہم بھی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر
ऊपर ही हम चाहेंगे कि हमें ये रिलीफ मिले। मतलब ये बातें करने से पहले इन लोगों को समझ नहीं आती है कि ये बात किस तरह की कर रहे हैं। फिर मुझे ये जो यहाँ मेरे दूसरे भाई बैठे हुए थे, अफसोस मुझे ये है, आज ये जिन्हें गद्दार कह रहे हैं, आज ये जिन्हें मुल्क से यहूदी एजेंट कह रहे हैं, कल तो उर्तगुल करते इनको थकते नहीं थे। उसी खान के नाम की सीट पर ही उस असेंबली में बैठे हैं, उसी खान के नाम के वोटों पर उस असेंबली में बैठे हैं, इनकी रोजी रोटी उसी खान के नाम की चल रही है। लेकिन अफसोस ये होता है कि 12% की नहीं, रोजी रोटी देने वाला तो अल्लाह है। आलिया हमजा साहिबा, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, इक़्तिदार देने वाला अल्लाह है। आप कहाँ पर जाके बात मिला रही हैं? देखिए नहीं, इनको इमरान खान रोटी देता है। रोजी रोटी, एक मिनट, सबकी रोजी रोटी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन एहसान फरामोश भी एक हद तक होना चाहिए। और जब ये बातें करते ना टिकट नहीं दी उन्होंने। और एक सेकंड ये एहसान फरामोशी के शिकवे बहुत लोगों को होंगे, फिर ये बात छेड़ेंगे और बहुत से लोग आ जाएंगे एहसान फरामोशी के शिकवे लेके। मुझे अगर ये पता होता ना कि आपने इनको बिठाना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज आपको बता रही हूँ मैं नहीं बैठती। इसलिए नहीं बैठती क्योंकि मेरी इखलाक या मेरे इक़दार इन बातों को जो है ना गवारा नहीं करते हैं। ये जो बातें करें एटम बम का, एटम बम कॉम्प्रोमाइज ये लोग करेंगे, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिनकी हुकूमत में दहशतगर्दी अरूज पे है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे माशी दहशतगर्द हैं जो मुल्क को उस पर ले आए कि $4 अरब मुल्क के खजाने में भी रह गया, एक्सपोर्ट यहाँ पर है नहीं, सीपैक का जिनको कोई पता नहीं। और मुझे अफसोस इस चीज का नहीं होता है, इतने इल इन्फॉर्म लोग बैठते हैं ना यहाँ पर जिनको ये नहीं पता कि चाइनीज ने खुद कहा है कि सीपैक खान सब के दौर में हमने उस पर ज्यादा काम किया था, वहां पर तो कोई नहीं जाकर पूछता है। एक्सपोर्ट खान सब के दौर में चैलेंज करें और मुज़ाकरा कर लें इस बात पर मेरे साथ। किया मैंने बड़ी आराम से इन लोगों की बातें सुनी है। अब जरा ना इनको कहें कि हौसला रखें और फिर ये जो इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने वही कहा है तब इदारों के लिए खड़ा होना था ना, जब वहां पर कहा जा रहा था कि बाजवा की टांगें कांप रही थी, वहां पर कहा जा रहा था कि हम 1 से 1 बजाएंगे, वहां पर कहा जा रहा था। तब आप लोग खड़े थे ना, इन्हीं बाजवा साहिब के साथ आप लोग खड़े थे ना। जवाब देना है, एक सेकंड, मैंने 3 लोगों की बातों का जवाब देना है, मुझे 1 मिनट हौसले से देने दें। ये नई टाइम कम रह गया है ना, मुझे बाकियों की तरफ भी जाना है। नहीं प्लीज, आपने बाकियों को 10 मिनट दिया और मेरे से नहीं, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला है। वैसे मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगी, लेकिन बाहर आप जवाब मुकम्मल करें। जवाब फरीदा प्लीज इनसे क्या खामोश हो जाए, ये बातें ये इनके। जी आलिया साहिबा, आप जवाब मुकम्मल कीजिए। जी मैं सिर्फ इतना इनको बताना चाहती हूँ, आज इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये जो इदारों की बात कर रहे हैं ना, ये जो पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ना, कल क्या कह रहे थे, शायद अब्बासी क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जवाब दे के लिए तलब करें। मरियम सफदर क्या कहती थी, नवाज शरीफ की सजाएं माफ करें और सजा देने वाले जजेस से माफी मंगवाएं। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस को घर भेजे। और ये आकर हमें इदारों के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, ये आकर हमें ये बताएंगे कि तकद्दुस होता क्या। फिर जिसकी बात ये जो आज ये कर रहे हैं, कल तक मुझे ये पता है, मैं जिस पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई थी कि जी एक टिकटॉकर, एक वो जो है भिजवा दिया उन्होंने शहबाज शरीफ को, मुल्क यहाँ पर डूब रहा है, अवाम यहाँ पर लुट रही है, यहाँ पर उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वहाँ पर जी हमारे आलिया साहिबा 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए आपके पास। 5 नहीं, मुझे 10 मिनट चाहिए, क्योंकि मैंने 10 मिनट इनकी बातों का जवाब देना है। शहबाज शरीफ को इन्होंने भेज दिया है जी, वहाँ पर इन्होंने ताजपोशी के लिए जाने, कभी सालगिरह के लिए जाने, कभी फौजगी के लिए जाने, मुझे ये बताएं। और वहाँ उनके साथ हो क्या रहा है, वहाँ एक मुंशी बुलाया जाता है जो मुंशी उनका इस्तकबाल करे। यहाँ पर एक टिकटॉकर को हमने वजीर खारजा बना दिया, उसे हमने भिजवा दिया ताकि जाओ तुम कश्मीर के खून का सौदा करो। ठीक है, चलो लेट मी गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स। आलिया साहिबा, लेट मी गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स नाउ। बोल चुका है, सिर्फ एक सेकंड। आलिया साहिबा, काफी टाइम माशाल्लाह आपने ले लिया है, अब बाकी पार्टिसिपेंट्स करना चाहती हूँ जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया, मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ, जो खान साहब ने दिखाया उसके पीछे भी डर्टी हैरी है, वही वाली है जो पहले मजहबी मुनाफिक। सबूत आप लोगों के पास इसके मौजूद नहीं है। अहमद हुसैन डेहर साहब, आलिया साहिबा 5 से 6 मिनट हो गए आपके मुसलसल बोलने के, जवाब देने के। आलिया साहिबा, मुझे प्रोग्राम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुजारिश है। मोदी इनसे बहुत खुश है, ये सारा मोदी वाला काम कर रहे हैं पाकिस्तान में।
इन लोगों के गवर्नमेंट के 2 बंदे आप बेइज्जत ना बिठाती, मोदी के एजेंट हैं ये। वकार सत्ती ने फैलाई, आज उसी तरह से ये इदारों के गलत दुश्मन खबरें मोदी के वकार एजेंट। अच्छा फैला रहा है। चल और आलिया इसी साहिबा जवाब जिम्मेदारी मुकम्मल हो गया पर आपका, आएगी। ठीक है। और अहमद हुसैन इन्होंने डेहर साहब, लास्ट जी बात, अहमद हुसैन डेहर साहब, के कत्ल की डेहर साजिश, साहब, और ये इनको इनकी अहमद वजह हुसैन से डेहर आज साहब। मालाकड और जो सबात है ना जी, वो डेहर साहब जवाब है। दीजिएगा। और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो लेडीज के डीसी के ऑफिस, डेहर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उनके ऑफिस के बारे जी, आ रही है जी। जी, आप जवाब दीजिए अहमद हुसैन डेहर साहब। चाहिए कि अवाम सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट खड़ी मैं होगी। इनको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हीरो बनना चाह रहे हैं इदारों के बारे में, जो ये बातें कर रहे हैं और जिस तरह नई नस्ल को ये बेरार रवि पे डाल रहे हैं, ये मोदी वाला काम कर रहे हैं। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन एक हो रहा था, एक इलेक्शन हो रहा था अपना लंदन में मेयर का, वहां इन्होंने यहूदी का साथ दिया। सी पैक को रुकवाने वाले ये लोग हैं। इस मुल्क को इस सबसे 76% जो लोन है वो पिछले 4 सालों में IMF का इन्होंने लिया है। और ये किस तरह हीरो बन सकते हैं? मेरे मुल्तान में 70 बन जले हुए बच्चों के कातिल इमरान खान है। मैं साबित कर दूंगा, 70 जले हुए बच्चों के कातिल हैं इमरान खान। मैंने अपने शो कॉज नोटिस के जवाब में उनके फोटो लगाए थे। ये कैसे हीरो बन सकते हैं हमारे सामने? हमने इनको बहुत करीब से देखा है। जो इनके राइट और लेफ्ट इमरान खान के बैठते थे मुल्तान में, वो कब्जे करवाते थे। मैंने उसके सबूत पेश किए इमरान खान को। इन्होंने ये कब कैसे बातें कर सकते हैं इस तरह की? इन्होंने तो मुल्क को इस दहाने पे खड़ा कर दिया है कि मैं समझता हूं कि इनको तो शायद कभी इस मुल्क के सबसे उस इदारे के खिलाफ जो तहफ्फुज का जामिन है। मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूं कि बजाय इसके कि ये इलेक्शन पे बात की जाए, सबको बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करना चाहिए और महंगाई खत्म करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब और PDM बैठ के इस पर काम करें तो इसकी जरूरत आलिया है। हमजा मलिक साहिबा, सेंटर असद अशरफ साहब, प्रोग्राम के आखिर में एक क्विकली बात करना चाहूंगी कि आज ही शहादतें हुई हैं। रोजाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में शहादतें हो रही हैं। ये वो खबरें हैं कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के अफसरान की शहादतों की, उनकी सेक्रीफाइसेस की खबरें आ जाती हैं, अवाम को पता चल जाता है। बहुत सी शहादतें ऐसी होती हैं कि जो ऐसे ऑपरेशंस में सामने आती हैं, जो आपके खामोश मुजाहिदीन होते हैं, जिनकी कोई खबर तक नहीं चलती, जिन्हें कोई क्रेडिट तक नहीं दिया जाता, कौम को पता तक नहीं चलता। सो जब आप अपने इदारों को, जब आप पाक फौज को इस तरह से टारगेट करेंगे, जो भी आपके मफाद हों, जिस भी सियासी जमात के मफादात हों, जिस भी सियासी रहनुमा के, तो एक लम्हे के लिए सोच लीजिएगा कि जिस माँ का बेटा, जिस बीवी का शौहर, जिन बच्चों का बाप शहीद हो रहा है, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, वो क्या सोचेंगे आपके इस किस्म के बयानात को सुन के। सो जरूरत इस चीज की है कि आर्मी चीफ बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप हमारा पाकिस्तान के तहत तामीर और तरक्की की तरफ बढ़ें, मुल्क की ना कि तखरीब में हिस्सा डालें। तो सबको जरा संजीदगी के साथ अपने अपने गिरिबान में झांक के एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पाकिस्तान की तरफ। बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।